Hello, friends. Today we are starting with our next topic, which is dependent on the matrices, and it is the Moore matrices basically. So Moore matrices has the part which is included in the linear algebra, and the linear algebra is the part of algebra in higher mathematics. So we are pursuing with this topic, and first topic is Hermitian and skew Hermitian matrix. So we will continue with these kind of things which are involved in which are given in our linear algebra. So we are starting with our first topic, that is Hermitian and skew Hermitian matrix. So first of all, before starting this topic, I am discussing about the conjugate and transpose again. We have already studied what is the transpose of the matrix, which is concerned with the symmetric and the skew symmetric matrix. And after that, what is conjugate? Conjugate is a different phenomena. So I will discuss that thing also. So first of all, I am discussing about the transpose and conjugate. Then we will go for our next topic, that is Hermitian and skew Hermitian matrix. So first is our what is conjugate. Conjugate of the matrix. देखिए conjugate करने से पहले, before conjugate, we want to know about the complex numbers. ठीक है, तो complex numbers की videos भी मैं आपके साथ discuss कर चुका हूँ. तो अब complex numbers topic के अंदर हमने क्या पढ़ा था? What is the conjugate of complex number? You have to change the sign in front of iota. आइटा के आगे वाला साइन चेंज करना है आपको. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? If A is any matrix having A, I, J type of elements with order m is to n, इसका ऑर्डर कुछ भी हो, तो ऐसे में A conjugate जब आप लेते हैं तो A बार से डिनोट करेंगे एंड A I J with conjugate with m is to n order. मतलब just you have to take the conjugate of each element which is present in the given matrix. So A is any matrix which has, suppose it is 1 plus iota, iota minus iota, 2 iota, 3 upon 2 iota, 0, 1, 2 and 4 iota. तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो A conjugate will be just change the sign in front of iota. तो आयोटा के आगे वाला साइन चेंज कर देंगे, माइनस आयोटा हो गया, माइनस आयोटा आपका प्लस आयोटा में चेंज हो जाएगा. दिस इज माइनस टू आयोटा एंड दिस इज माइनस 3/2 आयोटा. जीरो का conjugate zero ही रहेगा because zero is a real number, and this is 1, this is 2, this is minus 4 iota. तो in this way we have to change the sign in front of iota. तो आपको क्या मिलेगा? This is called the conjugate of the matrix A. ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? एक टर्म आपने पढ़ी थी ट्रांसपोज. ठीक है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज में आपने क्या किया था कि अगर सपोज हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है which contains a I j type of elements with order m is to n, then a transpose और a dash, a t और a dash से आप इसको डिनोट करते हैं. तो इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी? a j i with n is to m. इसका मतलब क्या होता है कि जो रो है उसका इंडेक्स कॉलम में और कॉलम का इंडेक्स रो में चेंज हो जाता है, और m is to n order changes into n is to m order. तो such kind of operations is called transpose of the matrix. Suppose मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, 1 minus iota, 2 iota, 3, 4 plus iota, 3 minus iota, 6 plus iota, iota, 0. तो अगर मैं आपसे कहता हूं इसका ट्रांसपोज लीजिए, तो सेम वैसे ही होगा जैसे हमने पहले डिस्कस किया था. ट्रांसपोज के लिए जस्ट आप क्या करेंगे? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देंगे. ठीक है, 6 प्लस आयोटा, आयोटा 0. तो मैंने क्या किया? जस्ट जो आपकी फर्स्ट रो थी उसको इस फॉर्म में लिखा, सेकंड रो को इस फॉर्म में लिखा, थर्ड रो को इस फॉर्म में लिखा. तो मेरे पास क्या बन गया? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बन गया, है ना. अब क्या है? अब जो न्यू थिंग आपने करनी है वो क्या है? तो इन आवर लीनियर अलजेब्रा वी नीड द ट्रांसपोज प्लस conjugate operation, that is called conjugate operation, because transpose and conjugate को हम मिला देंगे.
मिलाने के बाद हमारा जो न्यू ऑपरेशन फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसजुगेट ऑपरेशन। तो ट्रांसजुगेट ऑपरेशन डिनोटेड बाय ए थीटा। तो ए थीटा मतलब ए ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, या फिर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। मतलब आप चाहें तो ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं और कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी ले सकते हैं। मतलब वेन एवर यू वॉन्ट्स टू टेक ट्रांसपोज फर्स्ट देन कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट फर्स्ट देन ट्रांसपोज, देयर इज नो डिफरेंस, यू हैव टू गेट ए थीटा, है ना, ए थीटा चाहिए आपको। अब ए थीटा हमें चाहिए, तो ए थीटा क्या है, बेसिकली दिस थीटा इज कॉल्ड ट्रांजुगेट ऑपरेशन, राइट। तो ट्रांजुगेट ऑपरेशन हम किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। सी व्हाट इज ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज ट्रांसपोज प्लस कॉन्जुगेट, राइट। तो ए हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है, सपोज 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा 0 6 माइनस आयोटा 6 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा। मान लीजिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। तो कॉन्जुगेट के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट यू हैव टू चेंज द साइन इन फ्रंट ऑफ आयोटा, दैट इज 1 प्लस 2 आयोटा 0 6 प्लस आयोटा 6 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसको आप लिखेंगे 1 माइनस आयोटा आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 0 6 प्लस आयोटा 6 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, राइट। तो ये जो हमारे पास आई, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए थीटा, यानी कि ट्रांजुगेट मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। जो आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है ये उसका क्या है, ट्रांजुगेट है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया, पहले ट्रांसपोज लिया, उसके बाद मैंने सॉरी पहले हमने कॉन्जुगेट लिया, उसके बाद ट्रांसपोज लिया। मैंने देखा ये मैट्रिक्स आई। अगर मैं पहले देखिए, अगर हम पहले क्या ले लें, ए कॉन्जुगेट ले लें, ए ट्रांसपोज ले लें, तो देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा 0 6 माइनस आयोटा 6 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, इसको इस फॉर्म में राइट कर दिया, इस रो को सेकंड इस फॉर्म में राइट कर दिया, एंड दिस इज रिटन इन दिस फॉर्म, एंड आफ्टर दैट ए दिस कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज करके देखते हैं। अब साइन चेंज करेंगे तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 6 माइनस आयोटा प्लस आयोटा 0 3 माइनस आयोटा, दैट इज माइनस 2 आयोटा 6 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। देखिए क्या आया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुई और ये जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई, दीज टू मैट्रिसेस आर सेम। सो ए ट्रांजुगेट ऑपरेशन है, ट्रांजुगेट ऑपरेशन ए थीटा, whether you have to take the transpose first then conjugate and vice versa, you will get the same result. So it is proved here. After that, why we are discussing this thing, क्यों आप इसको डिस्कस करने जा रहे हैं, बिकॉज हमने क्या करना है, हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। अब देखिए स्क्यू हर्मिशन और हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, हर्मिशन को किसी किसी जगह पर कुछ लोग जो है हर्मीनियन बोलते हैं, हर्मीनियन, राइट, हर्मीनियन, राइट। तो उसमें टी साइलेंट हो गया, या फिर हर्मिशन बोल देते हैं, या फिर हर्मिटियन बोल देते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि हर्मिशन की जो स्पेलिंग है वो HERMITIAN है। तो उसके हिसाब से आप हर्मिशन बोलिए, हर्मिटियन बोलिए, हर्मिनियन बोलिए, दैट इज द सेम थिंग। सो वी आर कमिंग टुवर्ड्स आवर कॉन्सेप्ट, दैट इज हर्मिशन मैट्रिक्स। यस, व्हाट इज हर्मिशन मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब उस मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो वो हर्मिशन जो है वो सिमेट्रिक कैटेगरी में चली जाती है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसलिए ए मैट्रिक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इट कंटेन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड A is equals to Aij ऑफ ऑर्डर m is to n। देखिए यहां पर मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि जो A मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो A is equal to Aij ऑफ ऑर्डर m is to n over the complex numbers is called Hermitian matrix if A theta is equals to A।
ए थीटा इज इक्वल्स टू ए का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट लूं, मतलब ए आई जे का ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लिया जाए इस मैट्रिक्स का, तो हमारे पास क्या आनी चाहिए, वापस ए आई जे टाइप की एंट्रीज की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा कब होगा, ठीक है, ऐसा कब होगा ये हम देखते हैं। मतलब इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेने के बावजूद भी हमें क्या होनी चाहिए, सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन होनी चाहिए। तो बेसिकली इसको मैं ए आई जे की जगह ए जे आई राइट कर देता हूं, क्योंकि आपने ट्रांसपोज भी इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे। तो ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट ऑपरेशन के बाद हमें वापस वही एलिमेंट मिलने चाहिए। तो इस टाइप की कंडीशन अगर कहीं पर आती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए मैं आपको लिखकर दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मैं है ना यहाँ पर एक चीज और करूंगा, यहाँ पर मैं आपको रियल नंबर्स लिख के दिखाऊंगा। बस आई एम टेकिंग द रियल नंबर्स ऑन द डायगोनल ओनली। If here I am taking 1 plus iota, 1 minus iota, it is minus iota, it is plus iota, 4 plus iota, 4 minus iota। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या है, कुछ एक पैटर्न लिया हुआ है। वो पैटर्न किस टाइप का है आप देखिए। पहले पैटर्न से पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ व्हाट इज ए कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट आप निकालेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 1 माइनस आयोटा, आयोटा 1 प्लस आयोटा 2, 4 प्लस आयोटा माइनस आइटा 4 माइनस आइटा 3। देखिए रियल नंबर्स तो एज इट इज रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं, दैट इज ए थीटा। तो ए थीटा मेरे पास आ जाएगा 1, 1 प्लस आइटा माइनस आइटा 1 माइनस आइटा 2, 4 माइनस आइटा। इसको हम किस में लिख रहे हैं, रो वाइज राइट कर रहे हैं, 4 प्लस आइटा 3। तो ये हमारे पास देखिए वापस यही मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे, वी हैव अगेन द सेम मैट्रिक्स ए। तो मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, कॉन्जुगेट लिया, दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई वो कौन सी हुई, वापस वही की वही मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट, इट इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें जो मेन चीज ऑब्जर्व करने की है वो क्या है कि डायगोनल पर तो हमने क्या यूज करने हैं, हमेशा रियल नंबर्स यूज करने हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगोनल्स पर हमेशा क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। दूसरी बात आपको क्या करनी है, जो यहां पर आपने एलिमेंट लिखा है और यहां पर जो आपने एलिमेंट लिखा है, इनको आप देखिए ध्यान से, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, है ना। ये जो एलिमेंट आपने लिखा और ये जो एलिमेंट आपने लिखा, ये भी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, क्योंकि आइटा के आगे वाला साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसे ही आपने ये वाला एलिमेंट देखा और ये देखा, ये दोनों भी कैसे हैं, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। इसका मतलब अपर हाफ इज द कॉन्जुगेट ऑफ लोअर हाफ। एक तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सॉरी रियल नंबर्स। एंड दूसरी कंडीशन जो अपर हाफ है, इट इज द कॉन्जुगेट ऑफ द लोअर हाफ। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो मैट्रिक्स हमेशा कैसी होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। अब एक चीज और ऑब्जर्व करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला कि डायगोनल पर हमेशा रियल नंबर्स ही होने चाहिए। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर सपोज हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो ए आई जे कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए जे आई। मतलब हमारे पास जो कंडीशन आनी चाहिए वो कुछ इस टाइप की आनी चाहिए कि जो यहाँ पर एलिमेंट है, सपोज इट इज A12, आप ध्यान यहाँ पे देखिए A12 है कि नहीं, और ये कौन सा एलिमेंट है, A21। अगर मैं इस A12 का कंजुगेट ले लूं तो यही आएगा ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए आई जे का कॉन्जुगेट क्या आएगा आपके पास, ए जे आई के इक्वल आएगा। तो अगर ऐसा होगा, बट एट डायगोनल, अगर हम सिर्फ डायगोनल की बात करें, तो डायगोनल पर तो आई किसके इक्वल होता है, जे के इक्वल होता है। जब आई जे के इक्वल होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए आई आई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए आई आई, मतलब जे की जगह भी आप आई लिख दीजिए। तो ए आई आई कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए आई आई। तो इसका मतलब अगर ए आई आई मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं, ए प्लस अल्फा, अल्फा प्लस आइटा बीटा, तो आप देखेंगे अल्फा प्लस आइटा बीटा का कॉन्जुगेट किसके बराबर होना चाहिए, अल्फा प्लस आइटा बीटा के। और ये तब हो सकता है जब ये दोनों इक्वल हो, और इट इज पॉसिबल व्हेन 2 iota b is equals to 0, which is possible when beta is equal to 0. What are you getting from this, beta is equals to 0? Beta is equal to 0 means this value is equal to 0, means ai becomes alpha plus 0 iota, that is alpha only, यानी कि it must be a रियल नंबर। इसका मतलब ए आई आई मतलब जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए। तो ये चीज हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दी कि डायगोनल पर जो एंट्रीज हैं वो कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी रियल नंबर्स। ठीक है,
तो ये चीज हमने यहाँ से सीख ली कि हमारी जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उसमें डायगोनल पर जो एंट्रीज होंगी दे आर रियल नंबर्स एंड एवरी एलिमेंट विच लाइज इन द अपर हाफ इज द कॉन्जुगेट ऑफ द लोअर हाफ। ठीक है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर, अगेन A is equal to Aij of order m is to m is called skew Hermitian matrix if Aij conjugate with order m is to m is equal to minus of Aj of order m is to n। इसमें देखिए थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि जब आप ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। जैसा हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में जो डिफरेंस था, सिमेट्रिक क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। सिमिलरली हियर a theta is equals to minus a, है ना, in case of skew Hermitian matrix. So a theta is equal to minus a represent that the A matrix is skew Hermitian matrix. Now how will you write a skew Hermitian matrix? Suppose A is a matrix which contains only suppose I am taking zero at this place, क्योंकि skew symmetric में भी यही क्राइटेरिया था, तो मैं जीरो लेके देखता हूं क्या होता है। अगर मैं डायगोनल पर जीरो लेता हूं, यहां पर लिखता हूं 4 प्लस आइटा, तो आपने करना क्या है, जो एलिमेंट यहां पर लिखा इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए 4 माइनस आइटा, उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 4 प्लस आइटा। अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास है 2 माइनस आइटा, 2 माइनस आइटा का कॉन्जुगेट ले लो 2 प्लस आइटा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2 माइनस आइटा। अगर यहाँ पर है माइनस आइटा तो इसका कॉन्जुगेट ले लो प्लस आइटा, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस आइटा। अगर मैं ऐसा करता हूं जो मैंने अभी आपके सामने बोला कि जो अपर हाफ है उसका कंजुगेट विद नेगेटिव साइन अगर आप लेते हैं और डायगोनल पे जीरो लेते हैं, तो ये वाला जो एलिमेंट है ये इसका नेगेटिव विद कॉन्जुगेट है, ये जो एलिमेंट है ये इसका नेगेटिव विद कॉन्जुगेट है, ये एलिमेंट इसका नेगेटिव विद कॉन्जुगेट है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वो मैट्रिक्स हमेशा कैसी होगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। आप चेक कर लीजिए, आई एम टेकिंग द ट्रांसपोज हियर, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ ईच वन, माइनस 2 माइनस आइटा एंड माइनस आइटा जीरो, राइट। अब आप इसका कॉन्जुगेट लीजिए, ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट। अब मैं देखता हूं इसका कॉन्जुगेट लेके क्या आता है, 4 माइनस आइटा एंड 2 प्लस आइटा एंड इट इज minus 4 minus iota and minus 2 plus iota and 0, that is, and it is iota c। अब इसमें से आप माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो वी गेट 4 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, माइनस 4 प्लस आयोटा, 0, माइनस आयोटा, माइनस 2 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा 0, है ना। वट वी आर ऑब्जर्विंग हियर, इट इज माइनस ऑफ ए। आपने क्या किया, जब ये कर लिया तो उसके बाद हमने क्या किया, इसमें से माइनस थ्रू आउट मैट्रिक्स में से कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स आपके पास ऑब्टेन हुई है वो हूबहू वही मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स है जो ऊपर थी। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। यानी कि जब हमने ए थीटा ऑपरेशन लिया तो वैल्यू क्या हो गई आपकी, माइनस ऑफ ए के इक्वल हो गई। इसलिए ये मैट्रिक्स कैसी है आपकी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये चीज और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या जीरो ही होना चाहिए यहाँ पे, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर इमेजिनरी नंबर भी लिखा जा सकता है डायगोनल पर, डायगोनल पर प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, बट यू कैन नॉट राइट 2 प्लस आइटा समथिंग कॉम्प्लेक्स, नहीं, इट इज ऑलवेज ए जीरो और प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो मैं देखता हूं यहाँ पे, सपोज अगर हम इस टाइप का भी कोई एग्जांपल ले, सपोज मेरे पास ये मैट्रिक्स है, मैं डायगोनल पर है ना प्योरली इमेजिनरी नंबर राइट कर रहा हूं, मैंने लिखा आइटा और माइनस आइटा, 2/2 का एग्जांपल आपको लेके दिखा रहा हूं सिंपल। यहां मैंने लिख दिया 2 प्लस आइटा, यहाँ 2 प्लस आइटा का कॉन्जुगेट ले लो, क्या आएगा 2 माइनस आइटा, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2 प्लस आइटा। अब मैं देखता हूं इसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस आइटा, 2 माइनस आइटा, माइनस 2 माइनस आइटा एंड आइटा। फिर मैं इसका है ना ट्रांसपोज लेके देखता हूँ, ट्रांसपोज लूंगा तो क्या आएगा, माइनस आइटा, माइनस 2 माइनस आइटा, 2 माइनस आइटा आइटा, ये हो गया। अब इसमें से माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, माइनस साइन कॉमन लेते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 प्लस आइटा माइनस आइटा, दैट बिकम्स माइनस ए। तो क्या हुआ,
ए थीटा हमारा किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब अगर डायगोनल पर मेरे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो भी चलेगा, और डायगोनल पर सारे के सारे जीरो एलिमेंट हैं तो भी चलेगा। तो इन बोथ द केसेस वी कैन फॉर्म द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, बट शर्त ये है कि जो अपर पार्ट है दैट मस्ट बी द नेगेटिव एंड कॉन्जुगेट ऑफ द लोअर पार्ट, राइट। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उसका आप नेगेटिव लीजिए और कॉन्जुगेट लीजिए, तो जो आपके पास आएगा वो लोअर पार्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स आपके पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो आप अगर चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था वैसे ही सेम प्रोसीड कीजिए। आप प्रूव कर सकते हैं कि एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। यू कैन प्रूव इट with the use of the same concept as I have discussed in our Hermitian matrix case। और उसमें हमने क्या पढ़ा था, हर्मिशियन के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, हमेशा रियल नंबर्स होते हैं। वैसे ही आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, और ये एज ए रिजल्ट आपको लर्न भी रखना है फॉर 1 मार्कर्स। एंड आफ्टर दैट वी हैव सम प्रॉपर्टीज regarding the transpose here, a theta theta is equals to a मीन्स अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट लेकर उसका फिर से ट्रांजुगेट लेंगे रिजल्ट विल बी सेम। एंड सेकेंड इज, अगर आप a प्लस बी ट्रांजुगेट लेंगे तो दैट इज a थीटा b थीटा। जैसे हमारा ट्रांसपोज ऑपरेशन होता है उसी तरीके से आप थीटा ऑपरेशन भी अलग अलग मैट्रिसेस पर अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ एडिशन। सिमिलरली a माइनस बी थीटा भी अगर आपके पास है तो a थीटा माइनस बी थीटा लिखा जा सकता है। बट के ए थीटा अगर आप लेंगे तो उसको देखिए ध्यान से समझेंगे। के बेसिकली क्या है, या तो के कॉम्प्लेक्स नंबर होगा क्योंकि जो मैट्रिसेस पढ़ी जा रही है वो ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो के कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है और एनी रियल नंबर भी हो सकता है। तो बेसिकली जब आप ये ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हटाते हैं तो इस पर तो बार आती है और यहाँ पर क्या होता है ए थीटा। तो ध्यान रहे के टाइम्स ऑफ ए होल पावर is theta means conjugate of it is equals to k conjugate because k may be complex number and then a theta and a b whole power theta is b theta into a theta. So these are the basic properties which are related with the conjugate operation and we have to use these properties इन आवर रिजल्ट्स। जो आप यूज करेंगे उन रिजल्ट्स में हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको यह भी बता दिया कि ए थीटा अगर ए के इक्वल है तो ए को क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। एच मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। और ए थीटा इज इक्वल टू माइनस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ए इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ और रिजल्ट्स बताता हूं। फर्स्ट रिजल्ट हमारा क्या है कि सपोज इफ ए इज एनी हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर ए कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आइटा ए जो होती है इट इज ऑलवेज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। अगर ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आइटा ए मतलब अगर आप उसको आइटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैसी बन जाएगी, स्क्यू हर्मिशियन। देखिए हम इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं। अब देखिए अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इट मींस ए थीटा इज इक्वल टू ए, देयर इज नो डाउट, राइट। आफ्टर दैट आइटा ए को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो आप इसकी पावर थीटा ले लो। तो आइटा ए रेज टू द पावर थीटा इज इक्वल्स टू आइटा टू द पावर कॉन्जुगेट। देखिए आइटा विल बिहेविंग एज के, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट इट एज आइटा with a theta, आइटा conjugate with a to the power theta। एंड ये कैसी है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ये आपका माइनस हो जाएगा बिकॉज इसका अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, आइटा का माइनस आइटा एंड ए थीटा बिकम्स ए। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि आइटा ए टू द पावर थीटा मतलब ट्रांजुगेट ऑपरेशन आपने लिया तो क्या आ गया, माइनस ऑफ ए आ गया, आइटा ए आ गया। इसका मतलब ये कैसा है, आइटा ए इज द स्क्यू हर्मिटियन या हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंड सिमिलरली आप अगर चाहें तो ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इफ A is any skew Hermitian matrix then iota A is Hermitian। It is
वाइस वर्सा, ठीक है। आइटा ए अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आइटा ए स्क्यू हर्मिशियन होगी, और अगर ए स्क्यू हर्मिशियन है तो आइटा ए कैसी होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी, राइट। सेकेंड रिजल्ट इज इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स over complex matrix over complex numbers, then a plus a theta is always Hermitian matrix, ठीक है, Hermitian matrix, and a minus a theta is skew Hermitian मैट्रिक्स। देखिए इस रिजल्ट को करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यही सेम रिजल्ट हमारा पहले भी था। उसमें क्या था, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर द रियल्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम, ए प्लस ए थीटा मतलब ए में उसका ट्रांजुगेट ऐड करने पर जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो हर्मिशियन होगी, और माइनस करने पर जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो कैसी होगी, स्क्यू हर्मिशियन होगी। अब देखिए अगर आप इसका भी प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए पर कोई कंडीशन नहीं है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए मैं सीधा ये चेक कर लेता हूं कि ए प्लस ए थीटा का अगर मैं थीटा ले लूं, मतलब इस पूरी मैट्रिक्स का, क्योंकि जब भी आप किसी मैट्रिक्स का बिहेवियर टेस्ट करेंगे ना तो भाई सिंपल सी बात याद रखना है, उसके ऊपर आपने थीटा पावर लेनी है और उसके बाद फिर इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आप बता देंगे, या तो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स आएगा या फिर प्लस ऑफ दैट मैट्रिक्स आएगा जिससे आपने शुरुआत कर रखी है। तो अगर मैं इसका थीटा पावर लेता हूं तो क्या होगा, देखिए ये आ जाएगा आपका ए थीटा प्लस ए थीटा होल पावर थीटा, और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ए थीटा टू द पावर थीटा बिकम्स ए, एंड दिस इज ए प्लस ए थीटा। तो हमें क्या मिला कि जब मैंने ये मैट्रिक्स ली और इसका ट्रांजुगेट ऑपरेशन लिया तो ये ट्रांजुगेट फ्री हो गई, मतलब सेम वही मैट्रिक्स रिपीट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ट्रांजुगेट वापस इसके इक्वल है, देयरफॉर ए प्लस ए थीटा इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। सिमिलरली you can prove a minus a theta is a skew Hermitian matrix। तो उसमें क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ इसी तरीके से होगा। यू कैन डू इट, दिस इज आवर सेकेंड रिजल्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चल के, है ना। तो इससे पहले हमने बहुत सारा मैट्रिसेस का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की तरफ चल रहे हैं। इसी तरीके से आपका साथ बना रहा और आप हमारी वीडियोस वॉच करते रहे और शेयर करते रहे तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो और भी काफी सारी चीजें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी प्लस आइटा क्यू। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को विच इज टेकिंग ओवर द कॉम्प्लेक्स, उसको हम पी प्लस आइटा क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर द हर्मिशियन मैट्रिसेस। पी एंड क्यू आर द टू हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो देखिए इसमें क्या करना है, सपोज I am starting from our result. I am not I have dictated the theorem already. तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो बेसिकली आई एम डूइंग द एक्टिविटी राइट नाउ, ठीक है। उस एक्टिविटी के थ्रू हम अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे जो हमें चाहिए। आप एक ए मैट्रिक्स लीजिए, ए मैट्रिक्स को मैं राइट करता हूं हाफ ऑफ टू ए। ये हमने सेम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर भी जब प्रूविंग किया था वहां पर भी हमने किया था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट यहाँ पर थोड़ा सा रिजल्ट डिफरेंट है क्योंकि हम ओवर द कॉम्प्लेक्स बात कर रहे हैं। तो इसलिए ए मैट्रिक्स को जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस ए, है ना। अब आप एक काम कीजिए, इसमें ए थीटा ऐड कर दीजिए और ए थीटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ए थीटा आप सभी को पता ही है क्या करना है। तो आपके पास हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए थीटा आ जाएगा। फिर एक काम जो करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर देना है। जैसा ही आप इस तरीके से करेंगे तो हम एक काम करते हैं, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको अलग कर देते हैं, इसको अलग कर देते हैं और इसको नाम देते हैं P प्लस आइटा क्यू का से। आई एम एज्यूमिंग दिस थिंग
कि A can expressed A is a square matrix over the complex and I am writing A as P plus eta Q. अब जब मैंने इसको P plus eta Q की फॉर्म में लिख दिया और P मैट्रिक्स मेरी क्या है, हाफ ऑफ A प्लस A थीटा, मैं देखना चाहता हूं कि अगर मैं P थीटा लेता हूं तो क्या होगा। P थीटा लेने पर इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज 1/2 इज ए रियल नंबर, रियल नंबर का कॉन्जुगेट वही का वही रहेगा, ट्रांसपोज इसका ले नहीं सकते, तो एज इट इज रहेगा। और इसको आप लिख सकते हो हाफ ऑफ ए थीटा प्लस ए थीटा थीटा, दैट बिकम्स हाफ ऑफ ए थीटा प्लस ए एंड दिस इज इक्वल्स टू पी। देखिए वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स आ गई, क्योंकि एडिशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव, इसमें आप इसको ऐड करें या राइट से लेफ्ट में ऐड करें, दैट इज सेम थिंग, so we can replace it by P. It is our P matrix same. तो P theta is equal to P. जब P theta P के इक्वल हो गया तो ये बात कंफर्म है कि P कैसी है, हर्मिशन मैट्रिक्स है, राइट। अब एक बात और करता हूं, Q मेरे पास है 1/2 आइटा A माइनस A थीटा। Now Q theta, Q to the power theta is 1/2 iota with a माइनस ए थीटा होल पावर थीटा, और यहां पर आप क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा -1/2 आइटा ए थीटा माइनस थीटा टू द पावर थीटा, दिस बिकम्स -1/2 आइटा ए थीटा माइनस ए बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी की ए थीटा रेज टू द पावर थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट वापस ए होता है, तो ये आपके पास आ गया। और इसमें से अगर आप this is our the same matrix, but you have to take the negative sign common from here, तो माइनस साइन अगर आप कॉमन लेंगे तो बाहर प्लस हो जाएगा, तो a माइनस ए थीटा विच इज इक्वल टू q। तो आप देख सकते हैं कि a q थीटा किसके इक्वल आ रहा है, हमारा q के इक्वल आ रहा है, इट मींस q इज आल्सो हर्मिशन मैट्रिक्स। तो यहां से हमने क्या प्रूव किया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर कैन स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स p plus iota q where p and q both are the Hermitian matrices. This is our result, and in similar way we can prove that every Hermitian matrix A, यहां पर तो देखिए मैंने क्या बोला कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वहां पर हम कह रहे हैं कि एवरी हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेम ऐसे ही p plus iota q where p is a real and symmetric matrix and c is a real and skew symmetric matrix, ऐसा भी एक रिजल्ट है आपके पास। तो इसी तरीके से आप बाकी रिजल्ट्स भी बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रूव कर सकते हैं, because mathematics is very beautiful subject and basically linear algebra is most beautiful subject, so डू इट। एंड मैट्रिसेस का पार्ट तो वैसे भी बहुत इजी है, बहुत अच्छा पार्ट है करने के लिए, और इसके अंदर काफी कुछ जो आपके नेट के एग्जाम्स होते हैं या नेट जेआरएफ आफ्टर द ग्रेजुएशन उसके अंदर भी, और जो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें भी हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो थैंक यू for watching our channel on regular basis, and we will meet again in our next video with the next topic. Thank you.